خوش آمدید دی ڈیپ ڈائیو میں آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں صدیوں سے قارئین کو مسحور بھی کرتا آیا ہے اور خوفزدہ بھی۔ جی ہاں بالکل۔ ہم دانتے کے شہرہ آفاق تصنیف دی ڈیوائن کامیڈی کے پہلے حصے انفرنو یعنی جہنم کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس سفر کے لیے بہترین رہنما بھی موجود ہیں۔ ایک تو ہنری واٹسورتھ لانگ فیلو کا کلاسک انگریزی ترجمہ ہے، جی، ساتھ میں گستاو ڈورے کی وہ مشہور زمانہ تصاویر جو جہنم کے مناظر کو گویا زندہ کر دیتی ہیں۔ ہاں وہ تو واقعی بہت اثر انگیز ہے۔ اور جوزف نائگرن کے تیار کردہ نوٹس بھی ہیں جو کریٹو کامنز لائسنس کے تحت دستیاب ہیں، تو مواد کافی ہے۔ تو آج ہمارا مشن ہے دانتے کے جہنم کے اس تفصیلی نقشے کو سمجھنا۔ یہ صرف آپ سمجھے خوفناک سزاؤں کی فہرست نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، بلکہ یہ گناہ، انصاف اور انسانی فطرت پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ ہم کینٹو 1 سے 34 تک کا جائزہ لیں گے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دانتے نے کیا دیکھا اور اس کے کیا معنی ہیں۔ بالکل، ہم جہنم کی ساخت، اس کے مختلف دائرے، وہاں قید روحیں اور سب سے اہم جو سزائیں ہیں نا، ان کے پیچھے چھپی منطق پر غور کریں گے۔ اچھا، دانتے کے ہاں سزا اور گناہ میں ایک خاص تعلق ہے۔ اسے اکثر کانٹراپاسو کہتے ہیں۔ کانٹراپاسو؟ جی، مطلب سزا گناہ کی نوعیت کی عکاسی کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اصول کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے دانتے سے۔ وہ اپنی زندگی کے آدھے سفر میں ہے اور ایک تاریک جنگل میں بھٹک گیا ہے۔ جی، یہ جنگل ایک علامت ہے روحانی طور پر کھو جانے کی، گناہ میں بھٹکنے کی۔ وہ روشنی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنے کی جو نیکی کی نمائندگی کرتی ہے، مگر راستہ ظاہر ہے آسان نہیں۔ راستے میں 3 جانور آ جاتے ہیں، ایک چیتا ہے پھرتیلا سا، شاید شہوت کی علامت، یا فلورنس کے سیاسی دھڑے۔ پھر ایک غضبناک شیر ہے، غرور یا شاید فرانسیسی شاہی طاقت۔ اچھا، اور ایک لالچی مادہ بھیڑیا، یہ لالچ یا پاپایت کی دنیاوی طاقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ذاتی گناہ نہیں، یہ دانتے کے زمانے کی سیاسی حقیقتیں بھی ہیں، وہ طاقتیں جنہوں نے اسے فلورنس سے نکالا تھا۔ اسی مایوسی کے عالم میں ایک سایہ نمودار ہوتا ہے۔ جی، یہ روم کے عظیم شاعر ورجل ہیں۔ دانتے انہیں اپنا استاد، اپنا رہنما مانتا ہے۔ اور ورجل بتاتے ہیں کہ انہیں بھیجا گیا ہے دانتے کی مدد کے لیے، اور بھیجنے والی خود دانتے کی محبوبہ بیاٹرس ہیں، جو اب جنت میں ہیں اور الہی محبت کی علامت ہیں۔ اوہ، ان کے ساتھ سینٹ لوسیا ہیں، یعنی روشن خیالی کی علامت، اور کنواری مریم بھی اس مشن کی حمایت کر رہی ہیں۔ تو یہ یقین دہانی دانتے کو ہمت دیتی ہے کہ وہ ورجل کے پیچھے اس خطرناک سفر پر نکلے۔ جی بالکل۔ وہ جہنم کے دروازے تک پہنچتے ہیں، اس پر ایک بڑی خوفناک عبارت لکھی ہے۔ ہاں، اے داخل ہونے والو، تمام امیدیں ترک کر دو۔ یہ الفاظ ہی کافی ہے ماحول بتانے کے لیے۔ بالکل، دروازے سے فوراً اندر ایک عجیب منظر ہے، نہ جہنم ہے نہ دنیا۔ ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان روحوں کو سزا مل رہی ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی واضح موقف نہیں اپنایا تھا، نہ اچھائی کا نہ برائی کا، غیر جانبدار فرشتے اور انسان۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کا کانٹراپاسو یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں وہ کسی مقصد کے لیے نہیں لڑے، اب وہ ایک بے نام جھنڈے کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ڈسے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان میں پوپ سیلیسٹین پنجم بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے پوپ کا عہدہ چھوڑ دیا تھا، عظیم انکار کیا تھا۔ پھر وہ دریا ایکرون پر پہنچتے ہیں، جہنم کا پہلا دریا۔ یہاں کرون ہے، بوڑھا ملاح بڑے غصے میں روحوں کو پار اتار رہا ہے۔ جی، اور وہ دانتے کو زندہ دیکھ کر روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ورجل اسے یاد دلاتا ہے کہ یہ سفر تقدیر کا لکھا ہے، الہی حکم سے ہے، تو کرون خاموش ہو جاتا ہے۔ دریا پار کرتے ہی شاید مناظر کی ہولناکی سے دانتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ پہلے دائرے میں ہے، لمبو۔ جی، لمبو۔ یہاں کوئی آگ یا عذاب نہیں ہے، بس ایک اداسی سی ہے۔ یہ ان نیک لوگوں کا مقام ہے جو مسیح سے پہلے پیدا ہوئے یا بپتسمہ لیے بغیر مر گئے۔ تو ان کا کانٹراپاسو کیا ہے؟ ان کا کانٹراپاسو بڑا لطیف ہے۔ چونکہ انہوں نے الہی روشنی یعنی مسیحیت کو نہیں پہچانا، وہ اب ہمیشہ خدا کے دیدار کی نامکمل خواہش میں رہتے ہیں۔ بس یہی سزا ہے۔ اچھا،
यहाँ अजीम शायर हैं, होमर, हॉरेस, ओविड, ल्यूकन। फलसफी हैं, सकरात, अफलातून और अरस्तु। जानने वालों के उस्ताद, और हत्ता के सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा मुस्लिम हुक्मरान भी यहाँ इज्जत के साथ मौजूद है। लिम्बो को एक किले की तरह दिखाया गया है, जिसकी 7 दीवारें हैं, जो शायद 7 लिबरल आर्ट्स की अलामत है। लिम्बू से आगे बढ़ते हुए माहौल बिल्कुल बदल जाता है। दूसरे दायरे के दरवाजे पर माइनोस बैठा है। जी, कदीम क्रीट का बादशाह, अब जहन्नुम का जज है। वो हर रूह का गुनाह सुनता है और अपनी दुम को हाँ, अपनी दुम को इतनी बार लपेटता है जितने दायरे नीचे उस रूह को जाना होता है। अजब, तो ये दूसरा दायरा किसके लिए है? ये दायरा शहवत परस्तों का है। उनका कॉन्ट्रापैसो, एक ना खत्म होने वाला शदीद तूफान, उन्हें हवा में उछालता और घुमाता रहता है। ओह, जिस तरह जिंदगी में वो अपने जज्बात और ख्वाहिशात के तूफान में बह गए थे, अब वो एक हकीकी तूफान की जद में है। यहाँ दांते की मुलाकात फ्रांसिस्का द रेमिनी और उसके आशिक पाउलो से होती है। फ्रांसिस्का अपनी कहानी सुनाती है। जी, वो अलमनाक कहानी कि किस तरह लैंसलॉट की रोमानवी दास्तान पढ़ते हुए उनमें ममनुआ मोहब्बत पैदा हुई। किताब और उसका लिखने वाला ही गुनाह का सबब बने। बिल्कुल, और फिर उसके शोहर ने उन्हें कत्ल कर दिया। उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि दांते हमदर्दी से बेहोश हो जाता है। यानी दांते अभी भी गुनाह पर तरस खा रहा है। जी, अभी खा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो जहन्नुम में नीचे जाएगा, उसका रवैया सख्त होता जाएगा। खैर, तीसरे दायरे में पेटू लोग हैं, ग्लटन्स, जो पेट पूजा में हद से गुजर गए। उनकी सजा? उनका कॉन्ट्रापासो ये है कि वो ठंडी गलीज बारिश और कीचड़ में पड़े हैं, और सर्ब्रस, वो 3 सरों वाला खौफनाक कुत्ता, उन्हें भंभोड़ता और चीरता फाड़ता है। यहाँ दांते की मुलाकात चियाको नामी एक फ्लोरेंस के शहरी से होती है। जी, चियाको, वो न सिर्फ अपनी सजा पर बात करता है, बल्कि फ्लोरेंस के मुस्तकबिल की सियासी तबाही की पेशगोई भी करता है। यानी वही गोयल्स और गिबेलिन्स वाली बात। हाँ, खास तौर पर गोयल्स के 2 धड़ों ब्यानकी और नेरी के दरमियान होने वाली खूनरेजी का जिक्र करता है। ये पेशगोइयां दांते की जाती तारीख से बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं। चौथा दायरा यहाँ कौन है? यहाँ 2 मुखालिफ ग्रोह हैं। एक तरफ लालची एवरेशियस, जो दौलत जमा करते हैं, दूसरी तरफ फिजूल खर्च प्रोडिगल, जो उसे उड़ाते हैं। अच्छा, तो उनकी सजा? उनका कॉन्ट्रापासो ये है कि वो भारी वजन एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं, टकराते हैं और एक दूसरे पर चीखते हैं, तुम क्यों जमा करते हो और तुम क्यों उड़ाते हो। ओहो, दौलत का कदीम देवता प्लूटोस यहाँ पहरा देता है। वर्जिल यहाँ फॉर्च्यून यानी किस्मत की देवी की वजाहत करता है कि वो अंधी तकदीर नहीं, बल्कि खुदा के मंसूबे के तहत दुनियावी दौलत तकसीम करने वाली एक आसमानी कुव्वत है। 5वां दायरा, ये दरियाई स्टिक्स की दलदल है। जी, सतह पर गसीले रैतफुल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कीचड़ में लथड़े हुए हैं। ये उनके बेकाबू गुस्से का कॉन्ट्रापैसो है। और नीचे? और कीचड़ के नीचे दबे हुए हैं उदास या उकताए हुए लोग, सलन, जो जिंदगी की रोशनी से बेजार थे, अब अंधेरे में डूबे हुए सिर्फ बुलबुले छोड़ रहे हैं। कश्तीबान फ्लेगियाज उन्हें इस दलदल से पार करवाता है। यहाँ दांते का सामना फिलिपो आर्जेंटी से होता है, एक मुतकब्बिर फ्लोरेंटाइन। जी, और इस बार दांते तरस नहीं खाता। नहीं, बल्कि शदीद गुस्से का इजहार करता है। ये दांते की रूहानी तरक्की का एक निशान है। वो गुनाह से नफरत करना सीख रहा है। आखिरकार वो दिस शहर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये निचले जहन्नम का दाखिली दरवाजा है, एक किलानुमा शहर। मगर यहाँ बागी फरिश्ते उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। वर्जिल का मंतिक, उसकी दलील यहाँ नाकाम हो जाती है। सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती है जब 3 फ्यूरीज, इंतकाम की देवियां, दीवारों पर नमूदार होती हैं और मेडूसा को बुलाने की धमकी देती हैं। हाँ, मेडूसा, जिसकी नजर पत्थर कर देती है। वर्जिल फौरन दांते की आंखें ढांप लेता है। ये लम्हा दिखाता है कि इंसानी अक्ल यानी वर्जिल की एक हद है। शैतानी ताकतों के सामने इलाही मदद चाहिए, और मदद आती है। एक आसमानी कासिद नमूदार होता है। उसकी आमद से जहन्नुम की कुव्वतें लरस जाती हैं। जी, वो हकारत से बागी फरिश्तों को झड़कता है और एक छड़ी से दरवाजा खोल देता है।
अब वो छठे दायरे में दाखिल होते हैं। ये कैसा है? जलती हुई कब्रों का एक मैदान। जलती हुई कब्रें? यहाँ कौन है? यहाँ बद्दियातियों, हेरेटिक्स को सजा दी जा रही है। खास तौर पर वो जिन्होंने रूह के लाफानी होने से इनकार किया, जैसे एपिक्यूरियन फिलॉसफर। तो उनका कॉन्ट्रापासो क्या है? चूंकि उन्होंने रूह को फानी समझा और उसे जिस्म की कब्र में दफन माना, अब वो हमेशा के लिए जलती हुई कब्रों में कैद हैं। यहाँ दांते की मुलाकात फ्लोरेंस की दो बड़ी सियासी शख्सियात से होती है। फॉरेनाता देगली अब्रती, जो गिबलिन था, जी, शहंशाह का हामी, और कवलकांते दे कवलकांती, जो ग्वेल्फ था, और दांते के दोस्त गाइडो का वालिद। उनकी गुफ्तगू फ्लोरेंस के इस तबाहकुन सियासी तकसीम को जाहिर करती है जिसने दांते को जलावतन किया था, और वो ये भी बताते हैं कि जहन्नम की रूहें मुस्तकबिल तो देख सकती हैं लेकिन हाल से बेखबर हैं। अच्छा, तो कुछ देर रुककर कैंटो 11 में वर्जिल निचले जहन्नम की साख्त की वजाहत करता है। जी, वो बताता है कि आगे मजीद 3 दायरे हैं जो ज्यादा संगीन गुनाहों के लिए हैं। 7वां दायरा तशद्दुद, वायलेंस के लिए, 8वां दायरा धोखाधड़ी, फ्रॉड के लिए, और 9वां सबसे निचला दायरा खयानत, ट्रिचरी के लिए। और वर्जिल अरस्तु की अखलाकियात का हवाला देता है। बिल्कुल, वो समझाता है कि बेएतदाली, इनकॉन्टिनेंस यानी जज्बात पर काबू ना पाना, जिसे बालाई जहन्नुम यानी दायरा 2 से 5 में सजा दी जाती है, वो कम बुरा गुनाह है बनिस्बत तशद्दुद और धोखाधड़ी के। क्यों? क्योंकि उनमें अक्ल और इरादे का गलत इस्तेमाल शामिल है, और सूद खोली को भी तशद्दुद में शुमार किया जाता है। फितरत और फन जो खुदा की तख्लीक हैं, उनके खिलाफ तशद्दुद। अच्छा, अब वो 7वें दायरे में उतरते हैं तशद्दुद करने वालों की सजा की जगह। जी, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों पर तशद्दुद किया, उनका कॉन्ट्रापासो। वो फ्लगेथॉन नामी उबलते हुए खून की नदी में डूबे हुए हैं। उबलता हुआ खून? जी, इतनी गहराई तक जितना उनका जुर्म संगीन था। मिनोटॉर, जो वहशियाना तशद्दुद की अलामत है, रास्ते में गुर्राता है। और नदी के किनारे सेंटोर्स हैं, निस्फ इंसान निस्फ घोड़े। जी, उनकी क़यादत कायरून कर रहा है। ये तीरों से उन रूहों को निशाना बनाते हैं जो खून में अपनी मुकर्ररा हद से ऊपर आने की कोशिश करें। नेसस नामी सेंटोर दांते और वर्जिल को नदी पार करवाता है। दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद पर तशद्दुद किया, यानी खुदकुशी करने वाले। उनका कॉन्ट्रापासो बड़ा अजीब है। वो एक तारीख बदनुमा जंगल में कांटेदार जहरीली झाड़ियों में तब्दील हो गए हैं। झाड़ियों में? जी, और हार्पीज, वो खौफनाक परिंदे नुमा मखलूक, उनकी शाखें नोचते हैं जिससे उन्हें तकलीफ होती है और वो खून रोते हैं। यहाँ दांते पियर डेला विग्ना से मिलता है, जो शहंशाह फ्रेडरिक दोम का वफादार मुशीर था, लेकिन झूठे इल्जामात की वजह से खुदकुशी कर ली। इसी जंगल में फजूल खर्च करने वालों स्पेंड थ्रिफ्ट्स को भी सजा मिलती है। उन्हें काले भूखे कुत्ते फाड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी दौलत को तबाह किया, जो एक तरह से खुद पर तशद्दुद है। और तीसरा हिस्सा खुदा, फितरत और फन के खिलाफ तशद्दुद करने वालों के लिए है। ये एक जलता हुआ रेगिस्तान है जिस पर आग की बारिश हो रही है। आग की बारिश? जी, खुदा के खिलाफ कुफ्र बकने वाले ब्लेसफेमर्स, जैसे कपीनियस, जो अब भी खुदा की तकजीब कर रहा है, वो रेत पर लेटे हुए हैं। फितरत के खिलाफ तशद्दुद करने वाले सोडोमाइट्स, वो मुसलसल रेत पर दौड़ रहे हैं। यहाँ दांते की मुलाकात अपने उस्ताद ब्रूनेटो लाटीनी से होती है। ये एक बड़ा जज्बाती लम्हा है। दांते अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करता है, लेकिन उसे उनके गुनाह की हकीकत और सजा को भी तस्लीम करना पड़ता है। और फन के खिलाफ तशद्दुद करने वाले यानी सूदखोर यूजरर्स, वो रेत के किनारे बैठे हैं। उनके गले में उनके खानदानी निशान वाले थैले लटके हैं जिन्हें वो तकते रहते हैं। 7वें दायरे के किनारे पर उन्हें 8वें दायरे तक ले जाने के लिए जेरियन आता है। जी, जेरियन, धोखाधड़ी की मुजस्सम शक्ल। उसका चेहरा एक ईमानदार इंसान का, जिस्म सांप का और दुम बिच्छू की। क्या अजीब मखलूक है। ये धोखे की पुरकशिश मगर महलक फितरत को जाहिर करता है। वर्जिल और दांते उसकी पीठ पर सवार होते हैं और वो उन्हें नीचे मेलेबोल्ज की खाइयों में उतारता है। 8वां दायरा मालीबोल्जे यानी बुरी खाइयां, ये धोखाधड़ी के लिए है। जी, 10 गहरी पथरीली खाइयां हैं, एक मरकजी कुएं के गिर्द बनी हुई। हर खाई या बोल्जिया में एक खास किस्म के धोखेबाज को सजा दी जाती है। यहाँ सजाएं इंतहाई मुतनव्वे और अलामती हैं। पहली बोल्जिया में दलाल और बहकाने वाले,
जैसे जेसन जिसने मीडिया को छोड़ दिया था, उनका कॉन्ट्रपासो उन्हें सींगों वाले शैतान कोड़े मारते हैं, जैसे वो जिंदगी में दूसरों को हाँकते थे। और दूसरी बोल्जिया में चापलूस हैं। वो इंसानी गलाजत में डूबे हुए हैं। उनके अल्फाज की गलाजत की मुनासिब सजा। तीसरी बोल्जिया में साइमोनी के मुर्तकिब अफराद हैं जो चर्च के ओहदे बेचते थे। उनका कॉन्ट्रापासो बड़ा अलामती है। वो सुराखों में सर के बल उल्टे लटकाए गए हैं, पांव बाहर और उन पर आग लगी हुई है, जैसे बपतिस्मा के वक्त तेल डालने का उल्ट। यहाँ पोप निकोलस स्वयं भी है। जी, और वो दांते को गलती से पोप बोनीफेस हश्तम समझता है और क्लीमेंट पंजम की आमद की भी पेशगोई करता है। दांते यहाँ चर्च में दौलत परस्ती और कॉन्स्टेंटाइन के अतिया की सख्त मजम्मत करता है। चौथी बोल्जिया जादूगरों और नुजूमियों के लिए है। उनका कॉन्ट्रापासो उनके सर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं ताकि वो सिर्फ पीछे देख सकें, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में नाजायज तौर पर मुस्तकबिल देखने की कोशिश की। पांचवी बोल्जिया में बदनवान सरकारी एहलकार बैरिटर्स। जी, वो उबलती हुई तारकोल में डूबे हैं और उनकी निगरानी मालेब्रान के नामी शरीर और झगड़ालू शैतान करते हैं। इन शैतानों की हरकत में एक तरह का सिया मजाक भी है। छठी बोल्जिया में मुनाफिक है, हाइपोक्रेट्स। उनका कॉन्ट्रापासो वो शीशे के भारी चोगे पहने हैं जो बाहर से सुनहरे हैं। ये उनकी ज़ाहिरी पारसाई और अंदरूनी गुनाह के बोझ की अलामत है। यहाँ काइफा, जिसने यसू की मौत का मशवरा दिया था, जमीन पर मसलूब है और सब उसके ऊपर से गुजरते हैं। सातवीं बोल्जिया में चोर है। उनकी सजा तो सबसे खौफनाक लगती है। हाँ, वो सांपों के जरिए अजियत पाते हैं, राख बनते हैं, फिर दोबारा जिंदा होते हैं या सांपों के साथ मिलकर अपनी शनाख्त ही खो बैठते हैं। ये शनाख्त का खात्मा है। वानी फूची नामी चोर यहाँ दांते को गुस्ताखाना पेशगोई भी सुनाता है। आठवीं बोल्जिया में धोखेबाज मुशीर हैं, फ्रॉडुलेंट काउंसलर्स। उनका कॉन्ट्रापासो वो शोलों में छुपे हुए हैं। उनकी चालाक जबानें आग बन गई हैं। यहाँ यूलिसिस यानी ओडिसिस अपने आखिरी सफर की मशहूर कहानी सुनाता है, इल्म की बेलगाम जुस्तजू जो तबाही का बाइस बनी। ग्वाइडो दमूटे फिल्ट्रो भी यही है, जो पोप के बहकावे में आकर दिए गए गलत मशवरे की कीमत चुका रहा है। नौवें बोल्जिया फसाद फैलाने वालों के लिए है, सावर्स ऑफ डिस्कॉर्ड। यहाँ मजहबी फसाद फैलाने वाले हैं, मतलब ज़राए के मुताबिक मोहम्मद और अली का जिक्र है। सियासी फसाद और ख़ानदानी फसाद फैलाने वाले। इनकी सज़ा? एक शैतान उन्हें तलवार से मुसलसल काटता और चीरता है, जिस तरह उन्होंने इंसानी माशरे को तकसीम किया। बर्ट्रैंड डी बोर्न, जिसने बाप बेटे में जुदाई डाली, अपना कटा हुआ सर लालटेन की तरह उठाए फिरता है। अफ़्फो। 10वें और आखिरी बोल्जिया ये जालसाजों, फॉल्सिफायर्स की है। यहाँ 4 किस्म के जालसाज हैं और हर एक को एक आजियतनाक बीमारी लाहक है, उनके गुनाह की तरह, जो माशरे को बीमार करती है। कौन कौन सी बीमारियां? केमियागर को कोढ़ है, रूप बहरूपियों को पागलपन है, जाली सिक्के बनाने वालों को शदीद प्यास और जिस्म का फूलना है, और झूठे गवाहों को तेज बुखार। ये जगह बीमारी, बदबू और मायूसी से भरी हुई है। मालिबुल जे के मरकज में एक गहरा कुआं है जो 9वें और आखिरी दायरे की तरफ जाता है। जी, और उस कुएं के गिर्द कदीम देवकामत जिन्नात, जायंट्स खड़े हैं, जिन्होंने खुदाओं के खिलाफ बगावत की थी। उनमें निमरूद है, बाबुल के टावर का मौमार, जो अब बेमानी जुबान बोलता है। एफियाल्टीज जंजीरों में जकड़ा है। लेकिन एंटियस? हाँ, एंटियस, जो बगावत में शामिल नहीं था, वो आजाद है। वर्जिल इससे मदद मांगता है और वो जिन उन्हें अपनी हथेली पर उठाकर 9वें दायरे की बर्फानी सतह पर उतार देता है। बर्फानी सतह? आखिरी दायरा बर्फ का है? जी, ये है कोकाइटिस, जहन्नम की जमीवी झील। ये आखिरी दायरा खयानत, ट्रेचरी के लिए है, जो दांते के नजदीक बदतरीन गुनाह है, क्योंकि ये मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद को तबाह करता है। तो यहाँ सजा ठंडक है, गर्मी नहीं। बिल्कुल, ये दिलों की सर्दमहरी और खुदा से मुकम्मल दूरी की अलामत है। कोकाइट्स के 4 हिस्से हैं। पहला काइना, काबिल के नाम पर। जी, यहाँ रिश्तेदारों से गद्दारी करने वाले गर्दन तक बर्फ में जमे हैं। दूसरा एंटेनोरा, ट्रोजन एंटेनेर के नाम पर। यहाँ वतन या जमात से गद्दारी करने वाले सजा पाते हैं। यहाँ दांते